Not visible yet. It is loading. Hello? Not visible yet. It is loading. Because I am getting message that. It may visible now. Okay, because I am getting message screen sharing is on. Okay. Okay. Good afternoon to all. Today is the 11th lecture in this autoimmune disease series. For today's session, we have an eminent speaker and clinician, Dr. Chintan Sangani sir. He has done BAMS, MD in Rasashastra and Vaishajya Kalpana. When my screen is visible, please tell me, because I shared already. Not visible. Only once it was seen in the beginning. After that, it is Not visible till now. Once it was Not visible, visible. so that again Now it it became has went to home screen. Okay. I will join again. I'm leaving this session and I will join again. Wait. Okay. अरे चल अब सो जा रे।
ठीक है चार्ज मोबाइल में लगा रहेगा कुछ लगा नहीं पाएगा Hello, Dr. Chintan, kindly switch on your mic. Hello. Hello. Hello, hi doctor. Yes. Yes, we are requesting Dr. Chintan to switch on his mic. We have already made him a presenter. Okay. Okay. Hello. 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 Yes, doctor. Am I audible? Yeah, now you are audible. And kindly make me presenter again. Fine, we have made it. You please try sharing your screen now. Yes, the screen is visible now. Is my voice is audible? Yeah, it's clear. Yes. Now it is Okay. audible. Yes. Now it is audible. Visible. Shall we start? Yes. Okay. Good afternoon to all. Today is the 11th lecture in this autoimmune disease series. For today's session, we have an eminent clinician, Dr. Chintan Sangani sir. He has done his BAMS, MD in Rasashastra. He stood first in MD entrance exam in Maharashtra in 2011. He is consultant and HOD of Department of Dermatology and Trichology at Orthovet Hospital since 9 years. He is the co-founder of Orthovet Hospital. He is consultant at Vedanga Ayurved Panchakarma and Physiotherapy Center. He regularly conducts whole-day seminar on skin disorders for doctors. He has proficiency in Ayurvedic practice, Panchakarma with special interest in skin and allergic diseases, as well as in wellness and lifestyle management. He has worked on academic project on Laghu Malini Vasanta with standardization. He has assisted Vaidya Mangesh Deshpande sir for 9 years. He has assisted Dr. Dilip Thakkar sir, consultant dermatologist, since for 3 years.
He has presented various papers at various symposiums like in World Ayurved Congress Ahmedabad on eczema, in National Conference Ayush Expo in 2019. His dissertation topic was comparative study of physico-chemical properties of Tamra Bhasma prepared from Samanya Shodhan and Vishesh Shodhan. He attended 2 years course of residential education postgraduate cultural course at Tattwajnan Vidyapit. With this brief introduction, I request sir to start his session. Thank you. Sir. Sir, again the screen is not visible, sir. That's why it is disconnecting. I am starting my session. Please make me presenter. Hello. Hello.
पे है तो ठीक है, शायद घर में कोई लेट करेगा तो वहाँ पे छोड़ देगी, वहाँ पे कुछ नहीं है, खाना वाना होता है। आज आ गई नहीं, अरे नहीं चौकी है, चौकी से हाँ 5 बजे स्टार्ट है, 4 बजे आ जाना, मुझे शायद देख देगी छोटे को कुछ बोल रहा है ना, नहीं तो आगे बड़ी क्लास कर रहे हैं क्या बोलते हैं तो मैं भी वो कर सकती तो वहाँ पर आप कलेक्ट किया और राइट प्लेस टाइम से बोल देना और गिम्बल लिया ना यहाँ से।
Hello, is my voice audible? Yes, audible and visible too. Hello. If we can start it, sir. Hello. Is my voice audible? Yes, sir, you're audible, sir. Hello. Hello. Yes, sir, you're audible, sir. You're audible. सर आपला आवाज त्यांना जात नाही वाटतं सर. ते ऑडिबल हे कळत नाही त्यांना वाटतं. Hello. Shit.
Doctor, we have made you a presenter. Hello. Hello, doctor. सर लेक्चर रिशेड्यूल करत आपण आधी लोक लेफ्ट आउट झाले सर. खूप उशीर पण झाला आणि Hello. Hello. Am I audible now? Yes. Is my screen visible? Yes, now visible.
we start? It's visible now. Yes. Yeah, we are starting. Sorry for the technical glitch. First of all, salute to the doctor and salute to the Lord Dhanvantari, and we will start this session. And from last 10 lectures, we are hearing what are autoimmune disorders, what are their implications, how we can manage, how we can choose our various drug and everything. So in today's session, we are going to discuss about various skin condition. Without wasting much of time, we will start our discussion right now. That is the first our case study. पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है, 56 साल की फीमेल है, हाथ में उसका ऐसा प्रेजेंटेशन, सेम उसके पैर में ऐसा प्रेजेंटेशन और नील ऐसे है. ऑल नो इट इज अ सोरियासिस. स्किन कंडीशन में स्पेसिफिकली ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन में जब भी हम देखने जाते हैं और अलग डिजीज को एनकाउंटर करते हैं, तभी हमें ऐसी बातें समझ में आती है कि कई ऐसी स्किन कंडीशंस है कि जो कॉमनली हम देख सकते हैं. दे आर नॉट सो डेंजरस, उससे हमें कुछ ज्यादा हार्म नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हम डे टू डे लाइफ में उसका अकरेंस ये सबसे ज्यादा पाते हैं कंपेयर टू बोन जॉइंट स्पाइन, कंपेयर टू अदर सिस्टम डिजीज. स्किन डिसऑर्डर्स ये काफी कॉमनली हम डायग्नोस करते हैं हमारे ओपीडी में, और उसके साथ कुछ बातें हमें ऐसा लगता है हमें कॉलेज में सिखाया जाता है, या फिर एक ऐसा हमारी जात को हमें लगता है, हम सोचते हैं, समझना चाहते हैं. तो ये सोरियासिस इतनी इजीली और इतना ऐसा होता है, हाँ सोरियासिस आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर सोरियासिस ट्रीट कर सकता है, ऐसी ही सबकी समझ है. ऐसा लगता है कि नहीं, अभी सोरियासिस का केस आता है, फिर वो एमआरपी बोलता है कि ऐसे ऐसे ये प्रोडक्ट आप अप्लाई करो, ये इतने बजे अप्लाई करो, ये मेडिसिन लो, और एक भी फार्मेसी की प्रोडक्ट के बारे में कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि हमारे रिजल्ट बुरे हैं या इससे रिलीफ नहीं मिलता. इट इज जस्ट लाइक कि आप सब्जी वाले को पूछो ये सब्जी अच्छी है, तो कभी बुरा नहीं बोलता कि ये सब्जी अच्छी नहीं है. ऐसा ही हमें हर एक सोरियासिस के बारे में देखने मिलता है, परंतु जो क्लिनिशियन होता है उसको तुरंत समझ में आता है कि नहीं बाबा, मीन्स नया क्लिनिशियन होता है, वो सब यूज करता है, 7 दिन बाद 15 दिन बाद महंगी दवाई लेने के बाद भी वो वापस आता है क्लिनिक में और वो बोलता है कि डॉक्टर ठीक नहीं है. 14 दिन के बाद 21 दिन के बाद वापस आता है, हम अलग कॉम्बिनेशन देता है, वापस हमें यही रिप्लाई जानने को मिलता है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने वह डिजीज की सीवियरिटी समझी नहीं है. सोरियासिस जैसे डिजीज, लाइकन प्लेनस जैसे डिजीज, स्क्लेरोडर्मा जैसे डिजीज, यह सब जो डिजीज है, यह सब जो इम्यून डिसऑर्डर की स्किन की है, यह हमें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है. सबसे पहले इस डिजीज की गंभीरता को, इस डिजीज की सीवियरिटी को हमें समझने की अत्यंत आवश्यकता है. यानी हम यह डिजीज को किस तरह टैकल करते हैं, यह डिजीज को हम किस तरह देखते हैं और हमारे पेशेंट को हम कैसे समझाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. Majority of autoimmune disorders, skin and everywhere,
इट इज याप्य, इट इज रिकरिंग एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो ये बातें हमें पेशेंट को भी उतनी अच्छी तरह से समझाते आनी चाहिए। ये दवाई ले लो और तुरंत 7 दिन में 15 दिन में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इनके ये ठीक हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो कितने टाइम में ठीक होते हैं? 3 महीने में, 6 महीने में, साल में? कोई तो टाइमलाइन हमें भी पेशेंट को बतानी होती है। और ये जब भी बातें हम पेशेंट को समझाते हैं, ये जब भी बातें हम पेशेंट की देखते हैं, तभी हमें अलग अलग बातों, अलग अलग एस्पेक्ट पर विचार करना चाहिए। हमेशा मॉडर्न मेडिसिन की लिमिटेशन, यही आयुर्वेद की स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा पेशेंट 10
ठीक है कोई काम नहीं करेगा। जगह घूमने के बाद हमारे पास आता है और फिर हम बोलते नहीं नहीं आयुर्वेद से ये सभी शक्य है, दैट इज नॉट करेक्ट। इसीलिए हमारा आयुर्वेद का भी अभ्यास यह बहुत महत्व का हो जाता है, रिलेटेड टू स्किन कंडीशन, रिलेटेड टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और स्किन कंडीशन ऐसी है कि हम में से सभी ने यह सब कंडीशंस हमारे प्रैक्टिस में देखी, इसलिए यह सेशन हम थोड़ा टॉकेटिव, थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा, तो भी हम उसके बारे में सोच सकते हैं। तो अलग अलग क्षुद्र कुष्ठ की व्याख्या आचार्य चरक क्षुद्र कुष्ठ की व्याख्या डिजीज की जो की है, जिसमें एक कुष्ठ है, कीटिब है, विपादिका है, यह सब जो व्याख्या आचार्य चरक ने की है वह तीनों के अलग अलग जगह पर डिस्क्रिप्शन से सोरियासिस के डिस्क्रिप्शन मैच होते हैं। परंतु यह सभी बातों से एक चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि पेशेंट को टॉल क्लेम्स या झूठा दिलासा ये हमने नहीं देखा।
कि नहीं तुरंत ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने हमारे ओपीडी में यह बोलना की आदत भी लगानी चाहिए कि यह कंट्रोलेबल डिजीज है, यह क्योरेबल डिजीज नहीं। इट मे रीअकर, इट मे कम बैक। बीज स्वरूप से यह व्याधि शरीर में रहता ही है और वही यह व्याधि की स्ट्रेंथ है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की डेफिनेशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते, ये डिस्कशन काफी लंबे समय से आप सुन ही रहे हैं। परंतु स्किन कंडीशन में जब भी हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसा डायग्नोसिस का एक फैक्टर बताते हैं, एक फैक्टर में ऐसा बताते हैं कि यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इट सेज, इट इम्प्लाइज दैट इट विल टेक सम टाइम, it may reoccur and it may worsen if he or she not responding well to Ayurvedic treatment. यह सब बातें अगर आपके दिमाग में फिट होगी, उसलिए मॉडर्न का डायग्नोस्टिक टूल का इस्तेमाल यह स्किन कंडीशन में काफी अच्छा होता है। इसीलिए यह समझने की आवश्यकता है कि यह ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कोई एमआर, कोई नया सीखा हुआ वैद्य, कोई क्या कहते हैं परंपरानुगत वैद्य के जो ये ठीक करता है, पर हमें वो अंदर से समझना चाहिए कि यह व्याधि की, यह कैटेगरी के व्याधियों की स्ट्रेंथ है, तो उसे हमें ट्रीट ही नहीं करना चाहिए क्या, उसे रेफर ही करना चाहिए क्या? तो ये बात भी सही। तो बेस्ट इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें यह समझने के बाद कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हम हमारे नैदानिक विषय में एडिशन कर सकते हैं। यानी यह जो बातें हैं, यह जो श्लोक है कि विकारानाम कुशलो न जनीयात् कदाचन नहीं सर्व विकारा, यह हमारा एस्केपिज्म नहीं होना चाहिए। यानी आयुर्वेद में तो सब डिजीज का विचार किया गया है, सब डिजीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, परंतु उसका नाम नहीं आता रहेगा तो चलेगा। परंतु नाम नहीं आता होगा पर वो डिजीज समझने की ये हमें होनी चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन में, मॉडर्न एरा जब हम जी रहे तो हमें एटलीस्ट प्रोग्नोसिस पता होना चाहिए कि ये व्याधि का प्रोग्नोसिस क्या है। यह अगर प्रोग्नोसिस हमें पता चला तो हम काफी अच्छी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यह कर सकते हैं। फिर वो कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, whether it is psoriasis, whether it is pemphigus, whether it is eczema, whether it is scleroderma, lichen planus, ये सभी बातें समझना मॉडर्न की दृष्टि से एक बात है, पर उसका नैदानात्मक उपयोग यह हमें प्रोग्नोसिस और कभी पेशेंट को हमने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्किन के कंडीशन ऐसे होते हैं, बुलस पैम्फिगस जैसे, पस्ट्यूलर सोरियासिस, दे आर इन इमरजेंसीज, और वह इमरजेंसी अगर हमें नहीं समझ में आई तो हम पेशेंट का नुकसान कर सकते हैं। परंतु बाकी के जो ये है, सोरियासिस वल्गैरिस है, लाइकेन प्लेनस है, लोकलाइज स्क्लेरोडर्मा जिसे हम मॉर्फिया ऐसा कहते हैं, तो यह सब बातें यह आयुर्वेद की स्ट्रेंथ है और आयुर्वेद की चिकित्सा इसमें काफी अच्छा रिजल्ट देती। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या कोई भी स्किन डिसऑर्डर के बारे में यह चार बातें अगर हमारी स्पष्ट रही तो हम उसकी चिकित्सा, हम उसका प्रोग्नोसिस और हम उसकी एफिशिएंट रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आयुर्वेद की भाषा यह पेशेंट को समझाने के लिए डिफिकल्ट होती है, परंतु हमें समझने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए सोरियासिस यह डायग्नोसिस करने के बाद भी उसे सिर्फ ये सोरियासिस है इसलिए ये एक कुष्ठ है, सिर्फ ये प्लामोप्लांटर सोरियासिस है
इसीलिए यह विपादिका है। इतना ही सिर्फ न बताते हुए उसमें हमने यह सभी बातें, 5 बातों का विचार यह काफी महत्व का हो जाता है जो आचार्य ने चरक ने स्पेसिफिकली चरक कुष्ठ निदान अध्याय में कहा है। बाकी किसी में इतना स्पेसिफिसिटी आचार्य ने नहीं कही गई है कि जब भी कुष्ठ का व्याधि, कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति आपके सामने आता है, पेशेंट आपके सामने आता है, तभी निदान क्रम उन्होंने एकदम स्पेसिफिक बताया गया है। न च किंचित अस्ति कुष्ठ अस्ति पर समान प्रकृति कुष्ठान, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। दोष अंशांश विकल्प अनुबंध, दोषों की अंशांश कल्पना यह काफी इंपॉर्टेंट है। तत्पश्चात स्थान, तत्पश्चात वेदना वर्ण संस्थान, तत्पश्चात प्रभावानाम और तत्पश्चात चिकित्सित विशेषः। एक एक बात को जब भी हम एक्सप्लोर करने जाते हैं, एक एक बात को जब भी हम समझने जाते हैं, तो दोष अंशांश विकल्प अनुबंध जो है, यानी पेशेंट जब भी हमारे पास आता है तभी दोषों की स्थिति क्या होती है। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। हाँ, is it not visible? No, not visible. Screen is not visible? Not visible. Okay. Now visible. Now visible. My voice is audible? Yes, sir. Is my voice is audible? Yes, sir, you're audible, sir. Yes. Should we go ahead? Screen is visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. From where it was not, we can continue on this subject, right? Yes, sir. Anshansha Kalpana, you are telling, sir. Anshansha Kalpana. Okay, fine. जब भी पेशेंट हमारे सामने आता है तभी दोष अंशांश विकल्प अनुबंध, ये बहुत ही महत्व का पॉइंट हमने कुष्ठ में देखना चाहिए। पेशेंट किस अवस्था में हमारे पास आता है, कौन से स्थान पे यह व्याधि का उद्भव यह होता है, वेदना वर्ण, ये 5 बातें अगर आपके केस पेपर पे आप स्पेसिफिकली यह मैथ्स के रिडल में ये सॉल्व कर सकते हो, तो स्किन कंडीशन में कोई भी अलग व्याधि या ऑटो इम्यून कोई भी डिजीज हो, इसको इस 5 बॉक्स में आप डालना, समझना, यह उसका क्रक्स है। वह 5 इसमें देखने के बाद हम, हेलो, His voice is audible? Yes, sir, you're audible, sir. Okay. So, इस 5 में इस 5 स्थान में हमने जब हम पेशेंट को देखते हैं, हम पेशेंट को इवेल्युएट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद हम त्वचा रोग की सामान्य संप्राप्ति या फिर सामान्य विचार यह हमारे सामने रख सकते हैं। संप्राप्ति का उपयोग केवल 15 मार्क का प्रश्न इतना ही नहीं है, पर संप्राप्ति का उपयोग हमें वो मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने के लिए ले जाने वाला रास्ता, या जो हम विषय को समझ सके हैं उसलिए एक्सप्लोर करने का रास्ता ये है।
त्रिदोष प्रकोप यह कॉमन है सभी कुष्ठ में, तो भी वात पित्तज, कफ पित्तज, वात कफज, त्रिदोष तीनों का समान, यह सब बातें हमने पेशेंट के व्याधि अनुसार, पेशेंट के लक्षण अनुसार और पेशेंट की प्रकृति के अनुसार यह होता, यह हमने देखना है। और वहां से वो कौन से स्रोतस में जाता है, मुख्यतः कुष्ठ के 3 स्रोतस हम देखते हैं, रसवह स्रोतस, रक्तवह स्रोतस और मांसवह स्रोतस। आज हम जो त्वचा विकार को देख सकते हैं, तो यह तीनों स्रोतस के में से 1, 2 या तीनों स्रोतस दुष्ट होते हैं, उसमें हम देख सकते हैं। दोष, फिर से यह स्लाइड पे अगर हम विचार करते हैं कि दोष अंशांश विकल्पानुबंध, यह दोष अंशांश विकल्पानुबंध में आपका पूरा संप्राप्ति आ जाता है। जो हम यहाँ तक संप्राप्ति सीखे, हमें जो संप्राप्ति पता है, हम जो रुग्ण की जब हम संप्राप्ति लिखने बैठते हैं, 2 अलग अलग हिसाब से आप संप्राप्ति लिखना शुरू करो, तो उसमें पहली संप्राप्ति आती है, वह है हमारी हिस्ट्री टेकिंग के वजह से दिखने वाली, या फिर हिस्ट्री टेकिंग की वजह से हम संप्राप्ति लिखते हैं, जिसका स्वरूप कुछ ऐसे होता है। यानी हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और हमारे हिसाब से हेतु सेवन, तत्पश्चात ये यहाँ पे जनरलाइज लिखा है, उसमें हम स्पेसिफिक केस टू केस लिख सकते हैं। हेतु सेवन में क्या स्पेसिफिसिटी है, वह स्पेसिफिसिटी से कौन से दोषों का प्रकोप होना यह अपेक्षित है, कौन से दोषों का प्रकोप होने के बाद हेतु सेवन से, और वह दोषों का प्रकोप कौन से स्रोतस की व्याधि निर्माण करती है लिखते हैं, वह अपेक्षित है। वह स्रोतस में व्याधि का संचरण कैसे हुआ, कैसे दोष दुष्य सम्मूर्छना हुई, और फिर वहां पे दोष दुष्य सम्मूर्छना के बाद यह लक्षण निर्माण होने चाहिए, ऐसा एक संप्राप्ति का स्वरूप हम त्वचा विकार में दे सकते हैं। इसके बाद हमें जब भी कुष्ठ की यह चिकित्सा करनी होती है, हम जब भी कुष्ठ की चिकित्सा का विचार करते हैं, तभी दूसरी एक संप्राप्ति का महत्वपूर्ण विचार हमने करना चाहिए। इस चिकित्सा में कैसे हम सिलेक्ट करें कि पहले शोधन करना है, पहले शमन करना है, या स्थानिक कर्म को महत्व देना है, किस कल्प को प्रायोरिटी देके, प्राधान्यता देके हमने चिकित्सा की डिजाइन करनी है, यह हमें कैसे समझेगा, तो यह हमें समझेगा वह हमारी संप्राप्ति के सेकंड घटक से। यह जो 2 है, वेदना वर्ण संस्थान, स्थान विभेद प्रभावानाम, यह हमारे दूसरे संप्राप्ति के घटक, यानी संप्राप्ति 2 जब यह हम देखें दूसरी संप्राप्ति तो इसके एकदम विरुद्ध दिशा में वो संप्राप्ति देखेंगे। पहले विशेष, पेशेंट केम विद द कंप्लेंट ऑफ, वहां से शुरू करके एग्जैक्ट उल्टा जाने की शुरुआत करो। पेशेंट केम विद कंप्लेंट ऑफ के बाद जो कंप्लेंट पेशेंट लेके आया है, उसमें स्थान विचार, कौन से स्थान पर व्याधि है, स्थान विचार के बाद यह व्याधि का पूर्व इतिहास क्या है, पेशेंट को जो लक्षण दिख रहे हैं वह दोषानुसार आप सेपरेट करो, यानी कंडू, रुक्षता की वजह से कंडू है, स्निग्धता की वजह से कंडू है, पेशेंट को दाह है, पेशेंट को गौरव है, पेशेंट को स्राव है, पेशेंट का रुक्ष है, यह सभी बातों अगर हमें पता होगा तो कुष्ठ निदान एवं कुष्ठ चिकित्सा अध्याय में आचार्य चरक ने तीनों दोषों के लोकल सिम्टम्स का भी वर्णन किया है। वह लोकल सिम्टम्स देखने का प्रयत्न करो और एग्जैक्ट उल्टा संप्राप्ति आप मैनिफेस्ट करो, एग्जैक्ट उल्टा संप्राप्ति लिखने का विचार हमने यहाँ पे करना चाहिए।
और यह होने के पश्चात अभी हमें पता है, हम अगर सोचते हैं चिकित्सा के लिए सोचते हैं, तभी हमने शुरुआत कहां से करनी है? क्योंकि शुरुआत हम व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य से करें, शुरुआत हम शोधन से करें, शुरुआत हम स्थानिक उपचार से करें, वह हमारी दूसरी संप्राप्ति तय करती है। दूसरी संप्राप्ति तय करती है, यानी हमने जो कुष्ठ की संप्राप्ति, पेशेंट जो लक्षण लेके आया है, उदाहरण के तौर पर हेलो, Screen is not visible, sir, again. Now is it visible? Yes, sir. पेशेंट यदि रुक्षता, कंडू, परुषता, यह सब लक्षण और स्केल्स, ऐसे सभी लक्षण लेकर पेशेंट आता है और उसमें सार्वदैहिक लक्षण यह कम प्रमाण में मिलते हैं, यानी पेशेंट को जाठराग्नि मांद्य नहीं है, पेशेंट को मलबद्धता नहीं है, पेशेंट को बाकी कुछ कंप्लेंट नहीं है सर, ये ड्राइनेस है, यहाँ पे ईचिंग करने के बाद स्केलिंग होता है और कभी कभी वो रेड होता है। हमारी सेकेंड संप्राप्ति के अनुसार उसको पहले ड्राइनेस, ईचिंग, रेडनेस से हमें छुटकारा दिलाना है। तो वहां पे पित्त और वायु की चिकित्सा करने हेतु सारीवा जैसे द्रव्य का, पित्त और वायु की चिकित्सा करने हेतु पंचतिक्त घृत गुग्गुड़ जैसे द्रव्यों का, पित्त और वायु की चिकित्सा करने हेतु का कभी कभी शुरुआत में ही हमें स्नेहपान पेशेंट में करना पड़ता है और हमें रिजल्ट मिलता है। यह चिकित्सा के स्टेप, क्योंकि चिकित्सा के स्टेप में निश्चित ही करना यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कौन से स्टेप का विचार करना, कौन सी चिकित्सा को प्राधान्य देना, रसकल्प में कौन सा शुरुआत में रसमाणिक्य यूज करना या फिर हमने पहले रक्तमोक्षण करना। यह विचार यदि हमें समझ में आता है पेशेंट की सीवियरिटी के अनुसार, तो हम काफी अच्छा ट्रीटमेंट यह ऑटो इम्यून डिजीज का कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज यह लंबी रेस का घोड़ा, काफी लंबे समय तक हमें पेशेंट को केटर करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है और इन अ वे हमें भी पेशेंसली बहुत समझना चाहिए विषय कि मैं एक मेरी चाल के बाद दूसरी कौन सी चलूंगा, उसके बाद तीसरी, क्योंकि पेशेंट के लक्षण नष्ट होने के बाद, लक्षण में उपशय मिलने के बाद हमें तभी शोधन का चयन करना है या फिर हमें रसायन का चयन करना है। यह विचार काफी इंपॉर्टेंट है और यह विचार यानी लक्षण पहले 15 दिन में अगर हमने 70% से ज्यादा पेशेंट को लक्षण में उपशय नहीं दिया तो हमारी चिकित्सा में कहीं ना कहीं फ्लॉ है, हमारे निदान में कहीं ना कहीं फ्लॉ है। यह बात हम निश्चित जान, कोई भी स्किन डिजीज हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि 15 दिन के बाद हमने पेशेंट को ट्रीट कर दिया, पेशेंट को घर भेज देना है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि एक महीने में ही आप ट्रीट कर दो, ऐसा नहीं है, पर एटलीस्ट 15 डेज टू 21 डेज में पेशेंट के सिम्टम मोर देन 60%, मोर देन 70% ये रिड्यूस्ड होने चाहिए, जिससे पेशेंट का आप पर विश्वास बढ़ता है और हमें भी आत्मविश्वास बढ़ता है कि यस, ये व्याधि का व्याधि का स्वभाव ऐसे परिवर्तित हो रहा है। परंतु इन सभी में महत्व की बात है कि यहां तक अगर हमने समझा और फिर वही सेम ट्रीटमेंट चालू रखी, तो बहुत बार पेशेंट बोलता है कि पहले 2 फॉलोअप में 60%, 70% तक उपशय था, उसके बाद वह उपशय 60-70% ही रहता है, उससे आगे नहीं बढ़ता या फिर रिवर्स हो जाता है, रिकर हो जाता है, और उस वक्त हमने हमारी पहली संप्राप्ति निकाल के देखनी है और उसमें जो दोषों की दुष्टि हमें अपेक्षित है, हमारे आहारत विहारत हेतु की वजह से
वह संप्राप्ति के अनुसार, वह स्थान के अनुसार यदि हमने चिकित्सा कंटिन्यू की, समझो कफ का स्थान है तो कफग्न या कफ को प्राकृत करने के लिए हमने वह चिकित्सा का चयन किया, तो वह डिजीज काफी हद तक कंट्रोल में आता है। यह अगर हमारा बेसिक परफॉर्मेंस स्किन डिजीज के बारे में रेडी होता है, ऑटो इम्यून डिजीज का जब भी हम विचार करते हैं, स्पेसिफिकली सोरियासिस जैसे व्याधियों का, तो उसमें कुछ विशेष विचार भी हमारे आचार्यों ने करके रखे हैं, हमारे आचार्य ने किए हैं, जिसका फायदा, जिसका उपयोग हम हमारी चिकित्सा में कर सकते हैं। अभी तक की बातें सभी को क्लियर है क्या? यानी यह बातें नहीं समझेगी जब तक, तब तक आगे का थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। यहां तक के सेशन में कोई डाउट? हेलो, नो सर, इट इज क्लियर। अभी तक के सेशन में अगर कोई डाउट नहीं, तो अभी हम वैशिष्ट्यपूर्ण चिकित्सा के बारे में जब भी हम विचार करते हैं, विशेष चिकित्सा के बारे में जब भी हम विचार करते हैं, तभी कुछ अलग बातें आचार्यों ने रेड मार्क्स करके कुछ ऐसे क्या कहते हैं, चिकित्सा के लिए इम्पोर्टेंट जैसे की नोट करके भी आचार्य ने दिए। हेलो, जो है उससे हेलो, हेलो। हाँ, मुझे लगता है टेक्निकली बहुत ये आ रहा है। हम यही लेक्चर आगे का हमारा सिर्फ हाफ पार्ट है, वो कल कंटिन्यू करेगा डॉक्टर चिन्मय। बिल्कुल सर। हेलो, we'll continue this lecture tomorrow if it is possible at 3 p.m. I will coordinate with Dr. Chinmay and we can continue second half in later tomorrow because there's so much rain is also there, but due to some technical difficulties now and then screen is sharing is stopping and maybe sometime voice is also break. So okay.
Yes, the voice is breaking many times. So it will be good if we take it tomorrow. सर लेक्चर उद्या होईल का मग सर?